ایک مشہور کہاوت ہے کہ انسان ٹھوکر کھا کر سیکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح کی ایک کہاوت اور بھی ہے کہ فیلئر مطلب کہ جو ناکامیاں ہوتی ہیں وہ انسان کو کچھ نہ کچھ سکھاتی جاتی ہیں۔ یا اس کے علاوہ ایک اور بھی کہاوت ہم لوگ یہاں پر انکلوڈ کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جتنی مار پڑے گی جسم اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ یہ ساری کی ساری کہاوتیں آج کی ڈیٹ میں ایک ہی وقت پر اگر کسی کے اوپر فٹ بیٹھتی ہیں تو وہ ہے ایران دیش۔ وہ اس طرح کہ ایران، اسرائیل اور امریکہ سے جڑی ہوئی وہ حیران کر دینے والی خبر کہ جس نے اسرائیل اور امریکہ میں پچھلے 1-2 دن سے تہلکہ مچا رکھا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں تک بھی پہنچ ہی چکی ہوگی۔ خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے اوپر اٹیک کرنے کا جو پلان بنایا تھا، 10-15 دن کا ایک لمبا عرصہ لینے کے بعد جو ایک بڑی تیاری کی تھی، وہ سارا کا سارا ڈاکیومنٹ کی شکل میں لیک ہو چکا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے ملٹری ایکسپرٹس نے جو ایک لمبا وقت لے کر بڑی ہی محنت سے پورا پلان تیار کیا تھا، وہ اب ہر عام اور خاص انسان کے موبائل کی اسکرین پر موجود ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن اس معاملے میں یہاں پر ایران کا کیا اینگل ہے؟ تو دوستو، دراصل معاملہ یہ ہے کہ بھلے ہی امریکہ نے اس پورے معاملے کو بڑی ہی شانتی کے ساتھ قبول کر لیا ہو، یہ بھی کہہ دیا ہو میڈیا کے سامنے کہ ہاں ڈاکیومنٹ اصلی ہے، ڈاکیومنٹ لیک ہوا ہے، کافی سینسیٹیو معاملہ ہے، کافی سیریس معاملہ ہے، ہم بڑی تیزی کے ساتھ چھان بین کر رہے ہیں، مطلب پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گڑبڑی کہاں پر ہوئی ہے، اگر کوئی غدار ہے تو وہ کون ہے۔ مگر سچائی اتنی نہیں ہے کہ جتنی امریکہ دکھانا چاہتا ہے، کیونکہ اب دھیرے دھیرے میڈیا کے بہت سارے سورسز یہ بھی رپورٹ کرنے لگے ہیں کہ یہ کوئی لیک کا معاملہ نہیں ہے کہ جو امریکہ دکھانا چاہتا ہے، بلکہ لیک تو جان بوجھ کر اپنی عزت بچانے کے لیے کہا جا رہا ہے، ورنہ یہ سارا معاملہ ہیکنگ کے ذریعے سے ہوا ہے۔ ہیکنگ کے ذریعے سے ان ساری چیزوں کو حاصل کیا گیا اور پھر بعد میں ٹیلی گرام کے ذریعے سے اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کروا دیا گیا۔ مگر یہاں پر اب سب سے پہلا سوال تو آپ لوگوں کے دماغ میں یہی اٹھ رہا ہوگا کہ اس لیک ڈاکیومنٹ کے اندر ہے کیا؟ آخر اسرائیل ایران کے اوپر کس طریقے کا اٹیک کرنے جا رہا تھا، کیا کیا کرنے جا رہا تھا اور کیسے کرنے جا رہا تھا؟ دوسرا سوال یہ کہ کیا سچ میں ایران سائبر وارفیئر میں اتنا زیادہ ایڈوانس ہو چکا ہے؟ کیا واقعی اس کے ہیکرز اتنے زیادہ اوپر پہنچ چکے ہیں کہ وہ امریکہ جیسے دیش میں بھی بڑی آسانی کے ساتھ سیندھ لگا لے رہے ہیں؟ اور اگر ہاں تو آخر ایران ہیکنگ کے کیس میں اتنا زیادہ طاقتور ہوا کیسے، اور اس پرٹیکولر کیس میں اس ڈاکیومنٹ کو کیسے لیک کروایا گیا؟ ساتھ ہی آخر میں ایک سوال یہ بھی بچتا ہے کہ جب اب سب کچھ دنیا کے سامنے آ چکا ہے، ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی ہے، تو اب آگے کیا ہوگا؟ اسرائیل یا ایران کے پاس اب آگے کیا آپشن بچے ہوئے ہیں؟ سب سے پہلے اب اگر لیک ہونے والے ڈاکیومنٹ پر نظر ڈالی جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ 15 اور 16 اکتوبر کو ایران کے اوپر ایک بڑا حملہ کرنے کے لیے مہر لگا چکے تھے۔ یہ حملہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں تھا، بلکہ بہت بڑے لیول پر ہونے والا تھا، اتنے بڑے لیول پر کہ اگر وہ حملہ ہوتا اور ایران کے جو ڈیفنس سسٹمز وغیرہ ہیں وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتے تو یقینی طور پر ایران میں ایک بڑے لیول کی تباہی نظر آتی۔ اس حملے کو کرنے کے لیے اسرائیل کی طرف سے لگ بھگ 56 کے قریب میزائلز کا استعمال کیا جا رہا تھا، اور وہ بھی ایران کی طرح کوئی سرفیس ٹو سرفیس میسائل نہیں، مطلب ایسی نہیں کہ جو زمین سے چھوڑی جائیں اور پھر زمین پر جا کر گریں، بلکہ اسرائیل ایئر ٹو سرفیس میزائلز کا استعمال کرنے جا رہا تھا۔ ہوتا یہ کہ اسرائیل کے پاس جو امریکی F-35 یا F-16 جیسے فائٹر جیٹس موجود ہیں، ان کے ذریعے سے ایران کے پاس میں یا ایران کے اندر گھسا جاتا اور پھر ٹارگیٹ پر بمباری یعنی کہ میزائلز وغیرہ مار دی جاتی۔ خاص بات یہ ہے کہ اس لیک ہونے والے ڈاکیومنٹ سے بھی یہ پتہ نہیں چل سکا کہ اسرائیل کا ایران کے اندر مین ٹارگیٹ کیا تھا، مطلب یہ نیوکلیئر فیسلٹیز کو ٹارگیٹ کرتے، آئل کو ٹارگیٹ کرتے، یا پھر ملٹری جو ان کی فیسلٹیز ہیں ان کو ٹارگیٹ کرتے۔ لیکن ہاں یہ پتہ چل گیا کہ صرف ایئر فورس کے استعمال کرنے کا ہی پلان تھا، اور اگر ایران کی طرف سے اس کا ڈیفنس سسٹم یا کوئی دوسرے فائٹر جیٹ وغیرہ آ کر ان سے لڑنے کے لیے مقابلہ کرتے تو اس کی پلاننگ کے لیے بھی باقاعدہ یہ لوگ ایکسٹرا جو آئل ٹینکرز ہیں ہوا میں ہی ریفیولنگ کے لیے، وہ سب بھی لے کر جا رہے تھے تاکہ اگر لمبے وقت تک ایئر وار میں ان کو الجھنا پڑے تو وہاں پر یہ تیل وغیرہ بھرتے رہیں۔ لیکن آخر میں جب اسرائیل کو یہ بات ریئلائز ہوئی کہ وہ کون سے فائٹر جیٹس استعمال کرنے جا رہا ہے، ان میں کون کون سی میزائلز بھرنے جا رہا ہے، اس بات کی خبر تو ایران ہی کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو ہی پتہ چل چکی ہے، اور اب تو ایران اپنی طریقے سے تیاری بھی کر چکا ہوگا، تو آخر میں اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا یہ پورا پلان ہی
कैंसिल करना पड़ा। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट से एक और ख़ास बात ऑब्जर्व की गई और वो ये कि ईरान के ऊपर ये जो बड़ा अटैक लॉन्च किया जा रहा था, ये कहीं गल्फ कंट्रीज से नहीं कि जैसा कि बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बल्कि इसराइल के अंदर ही मौजूद 2 मिलिट्री बेसिस से किया जा रहा था। वही 2 अहम और मशहूर मिलिट्री बेसिस के जो ईरान के हमले का भी शिकार हुए थे। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं शायद ईरान की धमकी काम कर गई है। अब आप कहेंगे कौन सी धमकी? तो मैं आपको याद दिला दूं कि जब ईरान की तरफ से इसराइल के ऊपर अभी अक्टूबर के शुरू में बड़ा अटैक किया गया, बदले में इसराइल ने फौरन जवाबी कार्रवाई करने की कसम खा ली, तो ईरान के विदेश मंत्री ने फौरन ही आसपास के सारे देशों में और स्पेशली अरब देशों में घूमना शुरू कर दिया। बाद में जाकर ये खुलासा हुआ कि ये ईरान इतनी तेजी के साथ एक एक करके ये जो सारे अरब देशों में घूमा था, उस दौरे में दरअसल ईरान की तरफ से सारी गल्फ कंट्रीज को और स्पेशली सऊदी अरबिया को ये धमकी दी गई थी कि अगर आप लोगों की जमीन का इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर अटैक किया गया तो ईरान बिल्कुल भी नहीं सोचेगा और इसराइल से पहले आप लोगों के ऊपर बमबारी की जाएगी। और इसी के बाद ही ये खबर भी छप गई थी कि इसी धमकी की वजह से इन सारी गल्फ कंट्रीज ने अमेरिका को साफ मैसेज भेज दिया था कि वो अपनी जमीन का ईरान के खिलाफ किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि प्लान तो अब लीक हो चुका है, तो जो नया प्लान बनेगा हो सकता है कि उसमें किसी हद तक कोई बड़ा प्रेशर डाल के इनमें से किसी न किसी एक को मना लिया जाए और फिर उसकी जमीन का इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर अटैक भी कर दिया जाए। अब अगर बात करें इस बारे में कि इस डॉक्यूमेंट के लीक होने की सच्चाई क्या है, कि क्या सच में ये लीक हुआ भी है या इसको लीक करवाया गया है, या फिर न लीक हुआ है न लीक करवाया गया है बल्कि ये हैक हुआ है, जैसा कि मैं शुरू में भी बता रहा था, तो आपको बताता चलूं कि इस रिलेटेड मीडिया में 3 अलग अलग थ्योरीज घूम रही हैं। पहली थ्योरी तो यही है कि ये लीक हुआ है और लीक होने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है वो है 5 आइस कंट्रीज। आप जानते ही होंगे कि 5 आइस कंट्रीज अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को कहा जाता है और ये वही 5 कंट्री हैं कि जो आपस में एक दूसरे के साथ सारी खुफिया मालूमात यानी सारी इंटेलिजेंस शेयर करती हैं। तो माना ये जा रहा है कि इसराइल के अलावा शायद इस प्लान को 5 आइस कंट्रीज के साथ भी शेयर कर दिया गया था और इन्हीं 5 देशों में से किसी न किसी एक देश में कोई ऐसा इंसान बैठा हुआ है कि जो इसराइल से नफरत करता है या फिर ईरान का बैठाया हुआ जासूस है, जिसके जरिए से ही इस डॉक्यूमेंट को लीक करवाया गया है। जबकि जो दूसरी थ्योरी है वो ये है कि ये लीक हुआ नहीं है बल्कि लीक करवाया गया है, वो भी अमेरिका ने जानबूझकर लीक करवाया है। वो इसलिए क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इसराइल और अमेरिका का रिश्ता तो अटूट है। अमेरिका इसराइल की हर तरह से मदद करता है, आगे भी करता रहेगा, बल्कि जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि इसराइल की पूरी जंग ही इनडायरेक्टली पीछे से अमेरिका ही लड़ रहा होता है। लेकिन ये बात भी नहीं भूलना चाहिए कि इसराइल की जो मौजूदा गवर्नमेंट है मतलब कि बेंजामिन नेतन्याहू, दूसरी तरफ अमेरिका की जो गवर्नमेंट है मतलब कि जो बाइडन, इन दोनों के बीच शुरू से ही बिल्कुल भी नहीं बन रही है। तो इसीलिए एक अंदाज़ा ये भी लगाया जा रहा है कि क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन आ रहे हैं तो मुमकिन है जानबूझकर इस पूरे हमले को डिले करवाने के लिए या फिर इसकी जो इंटेंसिटी है उसको थोड़ा लो करवाने के लिए इस पूरे प्लान को जानबूझकर लीक करवाया गया हो। क्योंकि अगर आप लोग शुरू से इस जंग को डीपली फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ये एहसास हो चुका होगा कि कई मामलों में अमेरिका भी बेंजामिन नेतन्याहू को कंट्रोल करने में नाकामयाब साबित होता रहा है। अब बचती है हमारी तीसरी और आखिरी थ्योरी और वो ये है कि ये ना तो लीक हुआ है और ना ही जानबूझकर लीक करवाया गया है, बल्कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ईरान के हैकर्स का रोल है। इस थ्योरी को मजबूती इसलिए भी मिलती है क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका को सब कुछ कबूल करना पड़ा है और उसको काफ़ी बेइज्जती का सामना भी करना पड़ रहा है, उससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि अमेरिका ने जानबूझकर तो इस डॉक्यूमेंट को इस तरीके से लीक नहीं किया होगा। साथ ही साथ एक नोट करने वाली बात ये भी है कि ये जो लीक होने वाला डॉक्यूमेंट था, होना तो ये चाहिए था कि लीक होते ही ये सबसे पहले दुनिया के बड़े बड़े मीडिया आउटलेट जैसे कि BBC, CNN, स्काई न्यूज़, अल जजीरा, इन सब पर नजर आता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इसको सबसे पहले टेलीग्राम के ऊपर प्रो ईरानियन चैनल के द्वारा पोस्ट किया गया और उसके बाद ही ये सबसे पहले तो टेलीग्राम के ही ऊपर और फिर एक्स या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर घूमना शुरू हो गया। इसीलिए ये शक बढ़ जाता है कि हो ना हो इस मामले में डायरेक्ट ईरान का हाथ है।
अब हो सकता है कि या तो उसने ये काम अपने जासूस के ज़रिए से किया हो जो वेस्टर्न देशों में बैठा हुआ हो, या ये भी हो सकता है कि उसके हैकर्स ने ईरान या दुनिया के किसी और इलाके में बैठकर हैकिंग के ज़रिए से इसको हासिल किया हो। वैसे ईरान के ऊपर हैकिंग का शक जाना कोई गैर मामूली बात नहीं है, क्योंकि आप में से शायद बहुत सारे लोगों को जानकर हैरानी होगी कि अगर अमेरिका और रशिया जैसे देशों को हटा दिया जाए तो साइबर वॉरफेयर में ईरान का नाम टॉप में आता है। हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मीडिया में चर्चाएं भले ही ज़्यादा ना होती हों, लेकिन ईरान वक्त के साथ हैकिंग वगैरह के मामले में भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। और इसके पीछे मेन वजह वही है कि जिसके बारे में हमने बिल्कुल शुरू में बात की थी, यानी जितनी मार पड़ती है आपकी बॉडी उतनी ही ज़्यादा मजबूत होती जाती है। आसान शब्दों में कहूँ तो आप ये समझिए कि मिडिल ईस्ट में कोई भी ऐसा देश नहीं है कि जिसके ऊपर ईरान से ज़्यादा साइबर अटैक हुए हों। शुरू के दौर से ही ईरान के ऊपर एक के बाद एक इजराइल और अमेरिका की तरफ से बड़े बड़े साइबर अटैक होते रहे और ईरान को बड़ा बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। खास तौर से आप लोगों ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर होने वाले इजराइल के उस साइबर अटैक के बारे में ज़रूर सुना होगा कि जिसने ईरान को हद से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था, बल्कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको कई साल पीछे कर दिया था। उस अटैक में हुआ ये था कि पहले तो इजराइल ने एक वायरस की तरह कोई चीज़ तैयार की थी, फिर उसको पेन ड्राइव में डालकर एक ईरान में मौजूद जासूस के ज़रिए से ईरान की न्यूक्लियर साइट पर जो बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे उनमें से किसी एक कंप्यूटर में डलवा दिया था, जिसके बाद वो एक एक करके बाकी कंप्यूटर्स में फैलता चला गया और पूरा का पूरा सिस्टम ही जाम होकर रह गया। लेकिन हाँ दोस्तों, ईरान के ऊपर उस सबसे बड़े साइबर अटैक के बाद दुनिया ने दो चीज़ें महसूस की। पहली तो ये कि ईरान के ऊपर होने वाले लगातार जो साइबर अटैक्स थे वो न सिर्फ तादाद में कम होते चले गए बल्कि हल्के भी होते चले गए। दूसरी चीज़ ये कि खुद अब ईरान ऑफेंसिव मूड में आ चुका था, मतलब अब ईरान ही साइबर वॉरफेयर में काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा था और दुनिया भर के मीडिया में आए दिन उसके हैकर्स की खबरें छपने लगी थीं। उसने इजराइल, अमेरिका, सऊदी अरबिया सभी को निशाना बनाया। कभी तो सऊदी अरबिया की सबसे मशहूर और ताकतवर और अमीर कंपनी अरामको पर अटैक किया, तो कभी अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम पर अटैक किया। अमेरिका में तो लंबे वक्त से ये एक राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है, मतलब वहाँ के बड़े बड़े नेता अक्सर मीडिया पर ये बातें करते रहते हैं कि ईरान की तरफ से हर गुजरते वक्त के साथ ये जो बड़ा साइबर खतरा आ रहा है इससे कैसे निपटा जाए। तो साथियों, किस्सा मुख्तसर यही है कि इसमें कोई चौंका देने वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल मुमकिन है कि ईरान के हैकर्स ने भी ये काम किया हो। बाकी सच्चाई क्या है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर अमेरिका और इजराइल का ये एक प्लान हो ताकि ईरान को डाइवर्ट किया जा सके, उसको कंफ्यूज किया जा सके। और अगर सच में ये कंफ्यूज करने की कोई चाल होगी तो ईरान इससे कैसे निपटेगा, या फिर सच में प्लान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है जैसा नजर आ रहा है, तो आखिर नया प्लान कब तक बनाया जाएगा और कैसा बनाया जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।